So dear students, today our topic is the Me menu. This menu shown in figure 7.12 is identified by the currently logged in user's name. It is a quick access social networking and cloud access tool. The first few options, for example, available, away, busy, invisible and offline. यहाँ पर आपको फिगर 7.12 में क्या दिखाया गया है, द मी मेनू, और उसमें ये जो हमने अभी बोले ऑप्शंस, मैंने जो कहा आपको कौन से हैं, अवेलेबल, अवे, बिजी, इनविजिबल एंड ऑफलाइन. Let you specify your status that will be shown to others on social networking platforms. Next two options allows you to set up access to your social networking accounts. Once these have been established, the indicator applets will notify you about new messages, chat requests, etc. that you receive on those sites. You can also send messages and chat requests. ओके तो ये जो ऑप्शंस है जैसे कि अवेलेबल, अवे, बिजी, इनविजिबल एंड ऑफलाइन, तो आपके स्टेटस को दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ये शो करते हैं. और नेक्स्ट दो विकल्प है, दो ऑप्शंस है, वो आपको सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स पर पहुंचाते हैं. और एक बार ये इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित हो जाने पर इंडिकेटर अपडेट आपको नए मैसेज, चैट रिक्वेस्ट एक्सेट्रा ये जो चीज़ें हैं उनसे अवगत कराते हैं जो आप उन साइटों पर रिसीव करते हैं, और आप मैसेज और चैट रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं. The last option in the Me menu allows you to register the computer that you use with Canonical's free cloud-based service Ubuntu One. The meaning of cloud-based here is that all the files and folders you store in Ubuntu One are actually stored on Ubuntu's servers computers, not on your computer, and can be accessed over the internet from any computer anywhere in the world. This can also be shared with others. One must have an account with the Ubuntu One service to use it. If you do not have one, creating a free account is a simple process. तो यहाँ जो मी मेनू है उसका लास्ट ऑप्शन आपको कैनोनिकल की फ्री क्लाउड बेस्ड सर्विस उबंटू से आपके कंप्यूटर को रजिस्टर करने की आपको अनुमति देता है, मीन्स आपको परमिशन वो देता है. और यहाँ क्लाउड बेस्ड का मीनिंग है आपके द्वारा उबंटू में स्टोर किए गए सभी फाइल और फोल्डर आपके कंप्यूटर पर नहीं परंतु उबंटू के सर्वर कंप्यूटरों में भी स्टोर होते हैं और उन्हें इंटरनेट द्वारा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर सेंड किया जा सकता है और उन्हें दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया जा सकता है. और इसका उपयोग करने के लिए आपका उबंटू सर्विस के साथ अकाउंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. Ubuntu also allows you to CYNC signs means synchronize your contacts, browser bookmarks and files and folders on the local means current computer with the same information stored on the server. The synchronization process automatically compares each and every item on the local computer with the corresponding item on the server computer, and whenever it finds an item that has been added, modified, deleted more recently on one computer, it automatically applies the same operation to the other computer. At the end of the process, both the computers have identical and the latest record of the information. This way, if you synchronize from time to time, you always get the latest information irrespective of your geographical location and the current computer in use. तो उबंटू आपको आपके कॉन्टैक्ट, ब्राउज़र, बुकमार्क्स और फाइल और फोल्डर लोकल मीन्स करंट कंप्यूटर पर वैसे ही और वही इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज आप वहाँ कर सकते हैं और जैसे वो सर्वर पर स्टोर होते हैं. सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस अपने आप हर आइटम की लोकल कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर की कंपैरिजन करती है और अगर कोई भी आइटम एडेड, मॉडिफाई और डिलीट होता है तो वो अपने आप हो जाता है. प्रोसेस के अंत में दोनों कंप्यूटरों पर इंफॉर्मेशन के आइडेंटिकल
और लेटेस्ट रिकॉर्ड भी होते हैं। और इस प्रकार अगर आप समय समय पर सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको आपके जियोग्राफिक लोकेशन के अनुसार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लोकल कंप्यूटर पर मिलती रहती है। You may also synchronize one computer having a lot of data with the server and synchronize another refresh computer with the server. That would effectively transfer the data from one computer to another. Similarly, you may upload a file on the server from one computer and download and use the file on another computer anywhere in the world. This facility is a boon for people who have to travel a lot as there is no danger of forgetting to carry some important file with oneself. A lot of people keep a copy of their latest file on the cloud so that the same can be accessed from anywhere in the world or can be shared with others. तो इससे क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और इस प्रकार आप सर्वर या किसी भी कंप्यूटर से फाइल अपलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उस फाइल को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो। और ये फैसिलिटी उन यूज़र्स के लिए आशीर्वाद होती है जो अक्सर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ओके, और अपने साथ इम्पॉर्टेंट फाइलें लेना भूल जाते हैं या उन्हें फाइलें खो जाने का भी डर होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी लेटेस्ट फाइलों की कॉपी क्लाउड पर रखते हैं ताकि उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सके और दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सके। Ubuntu One also provides an online music store in bracket currently not available in India, जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, and the facility of instantly uploading and sharing photographs taken using an Android phone with friends and relatives. Ubuntu One can access from computer running Ubuntu, some other Linux, Unix operating system and Microsoft Windows as well as Android and iOS mobile phones. The free account provides 5 GB of storage. Additional storage, if needed, can be purchased. Advertisement and sale of storage space and music on this cloud service is one of the sources of revenue for Canonical. तो Ubuntu ऑनलाइन म्यूज़िक स्टोर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाता है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करके दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ नए लिए गए फ़ोटोग्राफ्स को तुरंत अपलोड और शेयर करने की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। उबंटू पर रनिंग कंप्यूटर कुछ अन्य लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एंड्रॉयड और iOS मोबाइल फ़ोन द्वारा उबंटू वन पर पहुंचा जा सकता है। फ्री अकाउंट 5 GB का स्टोरेज आपको वहां पर अवेलेबल होता है, प्रोवाइड किया जाता है और अगर आवश्यकता हो तो उसे परचेज भी किया जा सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेशन मेनू। The rightmost item on the top panel is the session menu. See figure 7.30. तो यहाँ पर 7.13 जो पिक्चर है वहाँ आपको क्या दिखाया गया है, सेशन मेनू। दिस मेनू प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर मैनेजिंग द यूजर्स सेशन. दिस इंक्लूड्स ऑप्शन टू लॉक द सिस्टम, लॉग आउट द सिस्टम, स्विच टू अनदर यूजर, पुट द सिस्टम इनटू स्लीप मोड और हाइबरनेट mode and shut down the system. The guest session option opens a session meant for temporary of casual users. The guest user cannot make any permanent change to the system and all the changes made by user in the temporary home directory. Means the concept of home directory is discussed in the previous chapter. Created for them are lost when the session एंड। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि ये जो सिस्टम है सेशन मेनू उसको लॉक करने, सिस्टम को लॉग आउट करने और दूसरे यूज़र पर स्विच करने, सिस्टम को स्लीप या फिर हाइबरनेट मोड में रखने और सिस्टम को शट डाउन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। गेस्ट सेशन ऑप्शन टेम्पररी या फिर कैजुअल उपयोगकर्ता के सेशन खोलता है, मीन्स ओपन करता है और गेस्ट यूज़र सिस्टम में कोई कायमी परिवर्तन नहीं कर सकता है और यूज़र द्वारा अस्थायी होम निर्देशिका में उनके लिए किए गए सभी
चेंजेस सेशन के समाप्त होते ही ख़त्म हो जाते हैं। So next topic is the bottom panel. The bottom panel as shown in figure 7.14 has the show desktop icon on the left side and the trash icon on the right side. When the user clicks on the show desktop icon, all open windows are minimized, revealing the desktop. Clicking again on the same icon restore the windows to their previous state. तो यहाँ पर आपको फिगर 7.14 है वो बॉटम पैनल की है और आपको दिखाए गए बॉटम पैनल में राइट साइड शो डेस्कटॉप आइकॉन और लेफ़्ट साइड ट्रैश आइकॉन होता है और जब यूज़र शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करते हैं तब डेस्कटॉप को दर्शाते हुए सभी ओपन विंडोज़ क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं और उसी आइकॉन पर फिर से क्लिक करने से आइकॉन उन विंडोज़ को फिर से उसकी मूल अवस्था जो पहले जैसे होते हैं वो वैसे में ले आते हैं। द ट्रैश कैन is provided for the user's safety. Any file or folder deleted by the users using the file browser is not deleted immediately. It is moved into trash can in the case the user deletes some files or folders accidentally or by mistake. The trash folder provides an opportunity to bring the same back. At any time, the user may open the trash by clicking its icon and see the deleted files and folder. See figure 7.15. तो 7.15 फिगर में क्या दर्शाया गया है कि ट्रैश कैन जो ट्रैश फोल्डर है वो यूज़र की सेफ्टी के लिए होता है और उसमें क्या होता है जो यूज़र द्वारा डिलीट की गई फाइल या फोल्डर तुरंत डिलीट नहीं होती है और उसे ट्रैश कैन में मूव किया जाता है। और किसी भी किस्से में अगर यूज़र्स भूल से या फिर एक्सीडेंटली फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब ट्रैश फोल्डर उसे वापस लाने का आपको मौका देता है और यूज़र किसी भी समय उसके आइकन पर क्लिक करके ट्रैश को ओपन कर सकता है और डिलीट की गई फाइल और फोल्डर होते हैं उसे देख सकता है कि उसने कौन से फाइल और फोल्डर को डिलीट किया है। ओके, नेक्स्ट इज राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइटम इन द ट्रैश ब्रिंग्स अप अ कॉन्टेक्स्ट मेनू दैट इंक्लूड्स द ऑप्शन टू open the item in bracket to see what is there in it. Cut or copy the item, copy or move the item to a selected directory, and option to delete the item permanently and a restore open options that puts the item back in the directory from where it was deleted. There is a button to empty the whole trash near the top. Selecting this option deletes all items in the trash permanently. Once an item is deleted permanently, it cannot be recovered. One important thing needs to be mentioned here through only items deleted from the graphical file browser are moved to trash. Items deleted in other ways from the terminal of or some program, for example, आर नॉट मूव टू द ट्रैश एंड आर डिलीटेड परमानेंटली। तो ट्रैश में किसी भी आइटम पर राइट क्लिक करने से एक कॉन्टेक्स्ट मेनू आपको मिलता है जिसमें जो आइटम होती है वो ओपन करने के लिए और उसको कट या कॉपी करने के लिए और आइटम को कॉपी करने के लिए और अन्य किसी सिलेक्टेड निर्देशिका में ले जाने के लिए आइटम को कायमी तौर पर डिलीट करने के लिए और आइटम को निर्देशिका में वही वापस रखने के लिए जहाँ से उसे डिलीट किया था। जैसे बहुत सारे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं और टॉप के पास ट्रैश को पूरी तरीके से खाली मीन्स एम्प्टी करने के लिए भी एक बटन होता है और इस ऑप्शन को चूज़ करने से ट्रैश में रहे हुए सभी आइटम हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं और एक बार ये आइटम्स जो होते हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, वो कायमी डिलीट हो जाने पर उसे फिर से हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दे का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि हालांकि केवल ग्राफिकल फाइल ब्राउज़र में से डिलीट की गई आइटम ही ट्रैश में मूव करती है और अन्य तरीके से डिलीट की गई आइटम ट्रैश में मूव नहीं करती है और कायमी तौर पर डिलीट हो जाती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। सी दिस इज़ द फिगर 7.50 व्यू ऑफ ट्रैश फोल्डर। यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया है ताकि उससे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिखाई देते होंगे जैसे कि ओपन, कट, कॉपी, कॉपी टू, मूव टू। ओके, तो इसमें से आपको
आप अपने वर्क के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके अपना वर्क फिनिश कर सकते हो। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैश आइकॉन इज़ द वर्क स्पेस switcher. It displays a mini representation of each workspace in the panel. By default, there are 4 workspaces in Ubuntu. The 4 workspaces are arranged in a 1:4 grid. It even tries to show how many and which windows are open in which workspace in such a small area. We may switch to any of the workspaces by clicking on its mini representation in the workspace switcher. We may also use the shortcut key Control Alt arrow key to switch between the workspaces. तो यहाँ क्या दिया है कि ट्रैश आइकॉन के लेफ़्ट साइड और वर्कस्पेस एक फीचर होता है और वह पैनल में रही हर वर्कस्पेस का मिनी रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले करता है। और उबंटू में 4 वर्कस्पेसेस होते हैं और 4 वर्कस्पेस 1:4 ग्रिड में उसको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। और वह दिखाने का भी वो प्रयत्न करते हैं कि इनमें इतने कम एरिया में कितनी और कौन सी विंडोज़ किस वर्कस्पेस में ओपन होती है। और वर्कस्पेसों के बीच स्विच करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल अल्टर एरो की का यूज़ भी हम कर सकते हैं। द एरिया बिटवीन द शो डेस्कटॉप आइकन एंड द वर्कस्पेस स्विचर इन द बॉटम पैनल इज इनिशियली एम्प्टी. दिस एरिया इज यूज्ड टू डिस्प्ले मिनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रनिंग एप्लीकेशंस consisting of their icons and titles. As we open more and more applications, this shrink in size. We may switch to any applications by clicking on its mini representation in the bottom panel. We may also use the key combination Alt+Tab to switch between running application. तो बॉटम पैनल में शो डेस्कटॉप आइकन और वर्कस्पेस के बीच रहा हुआ एरिया वास्तव में एम्प्टी होता है और ये एरिया सभी रनिंग एप्लीकेशनों को उनके आइकन और टाइटल के साथ डिस्प्ले करता है। और जैसे जैसे हम ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो साइज़ में क्या हो जाते हैं, श्रिंकिंग करते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। हम बॉटम पैनल में रहे हुए सभी मिनी रिप्रेजेंटेशन को क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। और एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए यहाँ पर Alt+Tab की के कॉम्बिनेशन का यूज़ भी किया जाता है।